Hello everyone, welcome to Project 10, which is a part of our 25 topics, 25 projects SQL series. In this project, we are going to explore the concept of subqueries, which is one of the most powerful tools in SQL. Here we will cover 8 interesting queries that will help you get hands-on practice and truly understand how subqueries work in real scenarios. Now, even though each project in this series covers a different SQL concept, different SQL topic, so if you are a beginner, I still recommend starting from project 1. It will help you get comfortable with the basics before jumping into more advanced stuffs like this. Also, the data set we are using today was built in the earlier project. So if you haven't set it up yet, be sure to check out the project setup video. Link is given in description. Link is showing above as well. So guys, please check that firstly and create the database, insert the data all there. Okay, in that project setup video, everything is there. I showed there how to create database tables and insert the sample data. And if your setup is already ready, then let's quickly jump into our subquery project. So firstly, let's understand what is subquery is all about. Subquery is basically a query inside a query. जो basic syntax होता है, it is like this. Firstly, we write our normal query like this: select column name, table name, and then the where clause. And then you can see here one parenthesis is here, the opening of the parenthesis, and inside this one more query is written, right? So this query is called subquery. Here you can see select, again column name from the name of the table, then the conditions, whatever. So opening of this parenthesis after this column name, here the initiation of subquery, right? Now let's have a look on some examples of subqueries. So first example is to use the subquery in where clause. Here you can see we have two queries. One is this outer query and then the beginning of this parenthesis, and inside this parenthesis the query number 2, which is called subquery. Okay, so first of all let's see what this subquery is saying. So it is saying to select the department ID from the department table. Department table में से हमें department ID select करनी है where department name is marketing. जहां department name क्या है, marketing है. So basically it is saying to select this row. So इस सब query का output क्या आएगा? इसका output आएगा 2 because we have to select the department ID. So output is 2. Now ये output हम इस parenthesis का result है. इस 2 output को हम यहाँ पे place कर देंगे. So our main query becomes like this, which is select name from employees table where department ID is 2. ओके, सो हमें नेम सेलेक्ट करने थे. सो जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा इट विल बी बॉब एंड चार्ली. ओके, नाउ कम टू द एग्जांपल 2. So subquery 2 is to use it in the select statement. Select statement में हम subquery कैसे use करते हैं? So we have written simply select the name of the column that we want in our output section, and then the starting of this subquery, which is select average salary from employees table as average salary. इसको हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस पूरी सबक्वेरी को हमने एक एलियास नेम दे दिया which is average salary and then from the employees table. So सबसे पहले इस सबक्वेरी का रिजल्ट देखते हैं क्या होगा. So select average salary. सैलरी नहीं, हमें एवरेज सैलरी यूज करनी है, ठीक है, फ्रॉम दिस एम्प्लॉय टेबल. इसका हमने एक नेम दे दिया एवरेज सैलरी. सो इसका जो आउटपुट आएगा, इसका एवरेज निकालने के बाद जो भी रिजल्ट होगा दैट विल बी द आउटपुट व्हिच इज 60,000. नाउ इन प्लेस ऑफ दिस सब क्वेरी वी विल राइट 60,000. सो हियर आवर मेन क्वेरी विल बी लाइक दिस: select name comma 60,000 as average salary from the employee table. सो हमें जो फाइनल आउटपुट मिला उसमें नेम आया और एवरेज सैलरी आई सबकी, ठीक है. So this is how we can use subquery in the select statement as well. Now come to the example 3, which is correlated query. So correlated subquery means what? इसका मतलब है कि हमारी जो ये subquery है ये डिपेंड करती है आउटर क्वेरी पे, ये इसके साथ रिलेटेड है समवेयर. अब हम इस एग्जांपल में समझते हैं कि इसके साथ कैसे रिलेटेड है. सी,
It is asking to get the names of employees who earn more than average salary of their own department. ठीक है, अगर हम एक डिपार्टमेंट को लेके चलें, सो डिपार्टमेंट अगर 1 की हम बात करें, ठीक है, सो इसकी हमें पहले एवरेज सैलरी निकालनी होगी विच विल बी समवेयर 50,000. अब हमें देखना है 1 बाय 1 रोज में जाते हुए कि क्या इस एलिस की एवरेज सैलरी इसके डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से ग्रेटर है. सो एलिस की सैलरी 40 है और इसके डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी क्या है, 50K है. सो वो ग्रेटर नहीं है, तो ये आउटपुट में शो नहीं होगी. फिर बॉब के पास आएंगे. बॉब की क्या सैलरी जो है वो इनके एवरेज सैलरी से ग्रेटर है. यस, सो ये 60 है और एवरेज सैलरी कितनी आई डिपार्टमेंट आईडी 1 की 50. सो ये है, ये आउटपुट में शो होगी. अब आएंगे रो नंबर 3 में. तो रो नंबर 3 में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो 2 है. अब अगर हम इसकी एवरेज सैलरी निकालें डिपार्टमेंट आईडी 2 वालों की, बिकॉज दे वांट द एवरेज सैलरी ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट, सो इसकी जो एवरेज सैलरी आएगी वो समवेयर इट विल बी समवेयर 73K अप्रॉक्स. ओके, नाउ जैसे ही चार्ली के रो में आए तो देखा कि इसकी सैलरी क्या 73K से ग्रेटर है. सो यस, सो इट विल कम इन द आउटपुट रो. नाउ डियाना के पास आएंगे. क्या इनकी सैलरी 73K से ग्रेटर है? यस, इट विल ऑल्सो कम. नाउ ईवा के पास आएंगे. 50,000 सैलरी है, नहीं है, सो इट विल नॉट कम. सो हमारे जो फाइनल आउटपुट्स होंगे उसमें आएंगे बॉब, चार्ली एंड डियाना. ओके, अब ये सारा कुछ क्वेरी के फॉर्म में हम एक बार समझ लेते हैं. सो कोरिलेटेड मीन्स कि ये जो है सब क्वेरी वो इस पे डिपेंड कर रही है आउटर क्वेरी पे, राइट. कैसे? फ्रॉम एम्प्लॉयज E1, ठीक है, नेम सेलेक्ट किया तो ये रो वाइज वर्क करती है. जैसे ही पहली रो में आए डिपार्टमेंट आईडी क्या मिली, 1 मिली. ओके, इसने ये डिपार्टमेंट आईडी 1 अपनी सब क्वेरी पे सेंड कर दी क्योंकि इन्होंने लिखा है वेयर डिपार्टमेंट आईडी E1 के बराबर होनी चाहिए. सो 1 में आ गई है. ठीक है, अब इनको एवरेज सैलरी सेलेक्ट करनी है. सो डिपार्टमेंट आईडी 1 की इन्होंने एवरेज सैलरी निकाल दी 50K. ओके, अब ये रो वाइज चल रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले एलिस की देखी, क्या ये 50K से ग्रेटर है. ग्रेटर का साइन है क्योंकि क्या ये ग्रेटर है, नहीं है. सो आउटपुट में एलिस नहीं आई. फिर ये बॉब पे आ गए. रो वाइज चलता है, सो पहले एलिस पे फिर बॉब पे आएगा. 60,000 क्या 50K से ग्रेटर है तो ये बॉब जो है वो आउटपुट में आ गया. अब इस तरह से रो थर्ड में आए. रो थर्ड में आते ही इन्होंने देखा कि डिपार्टमेंट आईडी 1 की जगह 2 हो गई है तो इन्होंने इस 2 डिपार्टमेंट आईडी को यहाँ सेंड कर दिया. अब एवरेज सैलरी इन्होंने तुरंत कैलकुलेट करी किसकी, डिपार्टमेंट आईडी 2 वालों की, ठीक है, जो कि समवेयर 73K निकल के आई. फिर इन्होंने चेक किया कि चार्ली की 73K से ग्रेटर है, डियाना की है, ईवा की है. रो बाय रो ये वर्क करता गया. जिनकी आई वो आउटपुट में शो हो गए, जिनकी नहीं आई वो आउटपुट में नहीं आए. दिस इज हाउ कोरिलेटेड सब क्वेरी वर्क्स. बेसिकली यहाँ पे एवरेज सैलरी तभी निकलेगी जब डिपार्टमेंट आईडी इनको मिलेगी कहाँ से, आउटर रो से. तो एवरेज सैलरी किसकी, फॉर डिपार्टमेंट आईडी 1 अगर यहाँ बने. एंड लाइक दैट. आई होप इट इज क्लियर गाइज. So these are the rules and guidelines for the subqueries. इसमें जो major focus वाला point है, it is point number 4. It says that we can use the subquery with the select statement from, where and having. Okay, and now let's move to our query part. So this is our query number 1. But before starting, I'm requesting to all of you guys that please do it along with me. I hope आपने अपना सेटअप प्रिपेयर कर लिया होगा, डेटाबेस सेट हो गया होगा, टेबल्स क्रिएट कर ली होंगी और उसमें डेटा भी इंसर्ट कर लिया होगा. नाउ यू हैव टू डू इट अलोंग विद मी. करना कैसे है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इस पीडीएफ के थ्रू एंड देन व्हेन आई एम डूइंग द कोडिंग पार्ट देन यू आल्सो हैव टू डू इट अलोंग विद मी. ओके, सो ये क्वेरी क्या कहती है कि फाइंड द कस्टमर्स हु प्लेस द मोस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स. वो कस्टमर बताएं जिन्होंने सबसे ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस किए हैं. ओके, बट हमें फाइनल रिजल्ट जो है उसमें सिर्फ कस्टमर की लिस्ट चाहिए. ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें फाइनल रिजल्ट में सिर्फ कस्टमर की लिस्ट चाहिए, कस्टमर का नेम और उसकी आईडी. कितने ऑर्डर प्लेस किए वो डिटेल हमें नहीं चाहिए, राइट. सो ये जो भी डेटा है कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी ये सिंगल टेबल से मिलेगा. ये कस्टमर की टेबल है, ये ऑर्डर्स की टेबल है, वो सिंगल टेबल से मिलेगी. ओके, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर सब क्वेरी. सो सबसे पहले हमें वो कस्टमर्स चाहिए, उनको काउंट करना है जिन्होंने सबसे ज्यादा नंबर्स प्लेस करे हैं ऑर्डर्स के. कैसे करेंगे? For that we need to simply select the customer ID from orders table. इस ऑर्डर टेबल में से हमें कस्टमर आईडी सेलेक्ट करनी है, राइट. अब इनको हमें ग्रुप करना होगा कस्टमर आईडी वाइज. फिर हमें ये रोज काउंट करनी होंगी. लाइक कस्टमर आईडी 1 जो है इनकी कितनी रोज हैं, जितनी रोज है उतनी ऑर्डर प्लेस हुए हैं क्योंकि सब ऑर्डर आईडी डिफरेंट है. सो कस्टमर आईडी 1 में 3 रोज हैं, इसका मतलब कस्टमर आईडी 1 ने 3 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं. ठीक है, कस्टमर आईडी 2 में 2 रोज हैं तो कस्टमर आईडी 2 ने 2 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं.
तो हमने क्या किया, ग्रुप बाय कर दिया कस्टमर आईडी से, ठीक है, ग्रुप वाइज हमें रिजल्ट मिला। फिर हमने ऑर्डर बाय करा काउंट ऑफ ऑल रोज विद द डिक्रीजिंग पैटर्न में ही है ये, पहले 3 फिर 2, एंड देन नाउ वी आर यूजिंग लिमिट। इसका मतलब जो पहली रो है यही हमें एज अ रिजल्ट मिलेगी, इसने ही हाईएस्ट ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। सो इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है 1। सो इस सब क्वेरी का जो रिजल्ट निकला वो निकला 1, ठीक है, कस्टमर आईडी 1, वो हम प्लेस कर देंगे अपनी मेन क्वेरी में। सो ये थी हमारी मेन क्वेरी, वेयर कस्टमर आईडी इज व्हाट 1, ठीक है। नाउ सेलेक्ट करेंगे कस्टमर आईडी और उसका नेम, वेयर कस्टमर आईडी इज 1, सो दिस विल बी योर फाइनल आउटकम, customer ID, customer name 1 Anjali. Okay guys, now let's do its coding part and you all have to do it with me. Okay, so let's open file and now we have to instruct SQL that we are going to use this store database क्योंकि इसी में हमारा पूरा data set है. Now run it and it is project 10. Okay, we are in the store database. Now query number 1. So query number is to get the customer list who placed most orders, right? अब हमें क्या लिखना है, सबसे पहले select customer ID, क्योंकि कस्टमर लिस्ट किससे मिलेगी, कस्टमर आईडी और उनके नेम से, एंड नेम फ्रॉम विच टेबल, सो ये सब कुछ है कस्टमर्स टेबल में, वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि 2 ही में 2 कस्टमर आईडी वाले ने सबसे ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस किए थे। बट हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले हमें व्हाट इज दिस, यहाँ पे हम 2 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, पहले हमें ये 2 का रिजल्ट चाहिए, उसके लिए हमें सब क्वेरी लिखनी होगी, एंड दिस सब क्वेरी सेज टू सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, ओके, एंड देन वी हैव टू यूज ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, जिससे कि सारी रोज काउंट हो जाएं, एंड देन ऑर्डर बाय काउंट ऑफ ऑल रोज इन डिसेंडिंग, एंड देन लिमिट लगा देंगे 1, दिस इज इट। Now we have to run it. So ये कस्टमर आईडी 17 है जिन्होंने सबसे ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, ठीक है, और ये दोनों कॉलम एक ही टेबल को बिलोंग कर रहे हैं, that's why we have used here subquery. यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि I know being a beginner और even being थोड़ा सा जब हम बिगनर से आगे के स्टेज पे पहुंच जाते हैं तभी भी हमारे ब्रेन में बहुत कंफ्यूजन्स रहती हैं कि कहाँ वेयर यूज करें, कहाँ ऑर्डर बाय यूज करें, कहाँ सबक्वेरी यूज करें, कहाँ ज्वाइन यूज करें, बहुत हॉचपॉच चलती है ब्रेन में। ये सारी हॉचपॉच आपके क्लियर होंगी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्टिंग में आप देख के करो प्रैक्टिस, कोई नहीं कह रहा आप खुद से करो, आपका ब्रेन जहां तक आपको अलाउ करे वहां तक आप देख के करो प्रैक्टिस। देन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका ब्रेन खुद चलने लगेगा, वो खुद सॉल्यूशंस ढूंढ के निकाल के लाने लगेगा। सो ये थी कुछ ज्ञानवर्धक बातें। हम वापस आते हैं अपनी क्वेरी पे। Now come to the query number 2 and it says to get the products priced above average price. Now, so this is our query 2 which says to here you can see we have to find the products whose price is greater than the average price। ठीक है, तो हमें क्या लिखना होगा, select product name and product price from the product table where price is greater than what average price। अब ये average price कैसे निकलेगा, उसके लिए हमने सब क्वेरी यूज करी है। So average price निकालने के लिए we have to write it like select average price from the products। So इस सब क्वेरी का जो रिजल्ट आएगा आपका वो कुछ आएगा 13,000, राइट। नाउ ये रिजल्ट हमारा मेन क्वेरी में
सब क्वेरी को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास है सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम प्राइस फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 13,200। सो इससे जो हमारा आउटपुट आया वो आया लैपटॉप। सी, बाकी के जो प्राइसेस हैं वो 13,000 से लेस हैं। ओके, नाउ डू द कोडिंग पार्ट। So we will write select product name and price from products table where price is greater than average price, right? Average price हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें select करना है average price from products and then close this parenthesis. Now run it, and here we have the products whose price is greater than the average price of all products. So these are those products. Okay, now come to our query number 3, and it says to get the customers who placed orders above average amount. ठीक है, अब मतलब कस्टमर्स ने जो भी परचेजिंग करी है, उनका जो भी टोटल अमाउंट रहा होगा, उनका एवरेज निकालेंगे, फिर उस कस्टमर को निकालेंगे जिसकी वैल्यू उस एवरेज अमाउंट से ग्रेटर है। ठीक है, सो इस क्वेरी को हम डायरेक्ट इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, और अपना ब्रेन चलाते हैं कि किस तरह से हमें इसका आउटपुट मिल सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द कस्टमर्स हु प्लेस द ऑर्डर्स, राइट? सो हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना होगा कस्टमर्स, और कस्टमर मिलते हैं कस्टमर्स टेबल में। सो कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी कॉमा कस्टमर्स का नाम, कस्टमर्स नेम किस टेबल में मिलेंगे, फ्रॉम कस्टमर्स टेबल, इसको हमने सी से डिफाइन करा, एंड देन वेयर, वही कस्टमर्स चाहिए जिन्होंने एवरेज अमाउंट से ज्यादा प्लेस किया है ऑर्डर। ठीक है, वेयर टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन एवरेज, राइट? बट इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, अब हमें ये बताना होगा कि टोटल अमाउंट किस टेबल में है। सो टोटल अमाउंट है ऑर्डर्स टेबल में, एंड एवरेज की जगह पे यहाँ पे हमें एवरेज निकालना होगा। दैट वी विल डू थ्रू द सब क्वेरी। सो वी विल राइट सेलेक्ट average of total amount from orders table, right? One more thing here, अभी हमने यहाँ total amount तो लिख दिया और total amount orders table में है, ठीक? बट ये दोनों कॉलम्स कस्टमर टेबल में थे, सो हमें यहाँ पे ज्वाइन भी यूज करना पड़ेगा। ज्वाइन करना होगा कस्टमर्स टेबल को किसके साथ, ऑर्डर्स टेबल के साथ। सो ज्वाइन विद द ऑर्डर्स टेबल on what basis, on where customers table की customer ID is equal to the orders table customer ID, right? Now let's run it, and here we have the list of the customers who place the orders above the average amount. Okay, now come to our query number 4, and query 4 says to get the products that were never ordered. Okay, जो ऑर्डर ही नहीं कभी करे गए हैं। सो अगर हमारे पास वो लिस्ट आ जाए, उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाए, वो प्रोडक्ट आईडीज मिल जाए जिनका ऑर्डर प्लेस हुआ है, ठीक, उसको हम एक लिस्ट में लिख दें और फिर लिख दें अब हमें वो आप प्रोडक्ट आईडीज दीजिए विच आर नॉट इन दिस ऑर्डर प्रोडक्ट आईडी लिस्ट। ओके, ये कैसा रहेगा? सो इसके लिए हमको क्या लिखना होगा, पहले तो हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे प्रोडक्ट नेम फ्रॉम द प्रोडक्ट्स टेबल। ओके, वेयर प्रोडक्ट आईडी, नेम के साथ साथ हमें प्रोडक्ट आईडी भी सेलेक्ट कर लेनी चाहिए, प्रोडक्ट आईडी। सो वेयर प्रोडक्ट आईडी नॉट इन दिस लिस्ट। अब ये लिस्ट कैसे आएगी? इस लिस्ट में हमें बेसिकली लिखना है कि कौन कौन से ऑर्डर्स अभी तक, कौन कौन से प्रोडक्ट्स के ऑर्डर अभी तक प्लेस करे गए हैं,
ठीक. So for that we have to use subquery which is select distinct product ID. ठीक है, product ID from which table? From order details table, क्योंकि order details table में ही वो product IDs मिलेंगी जिनके orders place हो चुके हैं अभी तक. Okay, now done it. And here we have all the product IDs जिनके order place नहीं हुए हैं. Okay, so query 5 says to get the customers from cities with high spending which is greater than 5,000. 5,000 से ज्यादा जिन cities में spending है उनके customers आते हैं. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं select. हमें क्या select करना है? name and city. कहाँ पे मिलेंगे ये? From customers table. Let's see. ठीक है, customers में ID name के साथ city भी है. So from customers table where city is in the किस में हो? जहाँ पे जो spending है वो greater than 5,000 हो, वो यहाँ पे हमें statement लिखना है. So वो हम कैसे लिखेंगे? For that we need to write to select city from customers table. Now join it with the orders table. Okay, क्योंकि total amount हमें orders table में मिलने वाला है. That's why we have to join it with the orders table. On what base? So on where orders table की customer ID is equal to the customer table की customer ID. Now we have to use the group by, क्योंकि हमें city wise result चाहिए तो हमें grouping करनी होगी city wise, and then we have to use the having filtration. So हमें sum करना पड़ेगा किसका? total amount का. sum of total amount जो कि orders table में है, and ये greater हो किससे? 5,000 से. This is it. Now एक चीज और, यहाँ पे repeated names ना यूज हो, so उसके लिए हम distinct भी यूज कर लेते हैं. अब हमें इसको रन कराना चाहिए. Orders 4. So here is the result. अमन गुप्ता दिल्ली सिटी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे हाईएस्ट जो स्पेंडिंग है वो 5,000 से ज्यादा है. So this is our result. Okay. Now come to query number 6 and it says to get the most ordered products. Most ordered products. Now most ordered products कैसे मिलेंगे? So अगर हम condition लगा दें where product ID is equal to the उस product ID के जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा नंबर्स में प्लेस किया गया है, जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा हुआ है. ठीक है, सो वो प्रोडक्ट आईडी अब हमें कैसे मिलेगी? उसको हम लिखेंगे सब क्वेरी में. तो सबसे पहले तो हमें वो प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट का नेम और उस प्रोडक्ट की आईडी चाहिए. किस टेबल में से? फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल में से. वेयर प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, उस प्रोडक्ट आईडी के इक्वल हो जाए जिसका सबसे ज्यादा बार ऑर्डर प्लेस किया गया है. ठीक है, तो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए अब हमें क्वेरी लिखनी पड़ेगी और वो क्वेरी होगी टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स टेबल. अब इसे हमें ग्रुप बाय करना है प्रोडक्ट आईडी के बेस पे. फिर हमें इसे ऑर्डर बाय करना है, इसको सम को ऑफ द क्वांटिटी दैट हैज बीन ऑर्डर्ड, सबका सम करेंगे एंड देन इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करके लिमिट लगा देंगे क्योंकि हमें मोस्ट चाहिए, इसलिए हमें टॉप रो ही केवल चाहिए रिजल्ट में. एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन पैरेंथेसिस. सो यहाँ पे हम इसको ओडी से डिफाइन कर देते हैं
और यहाँ पे OD डॉट क्वांटिटी। नाउ रन इट। और ये रहा हमारा प्रोडक्ट जिसको सबसे ज्यादा बार जिसका ऑर्डर प्लेस किया गया है, विच इज सोनी कैमरा। Okay, now come to the query number 7 and it says to get the customers who ordered the most expensive product. मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट? अगर हम कंडीशन लगा देते हैं वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू द व्हाट, जितना मैक्सिमम प्राइस है उसके इक्वल। सी यहाँ पे आपको प्राइसेस गिवन है प्रोडक्ट डिटेल्स में। कहाँ है प्रोडक्ट टेबल? ये है। यहाँ पे आपको प्राइस गिवन है। अगर हम लिख दें वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ द प्राइस, इस प्राइस कॉलम में मैक्सिमम प्राइस, ठीक, वो हमें कैसे मिलेगा? सो फॉर दैट फर्स्टली वी नीड टू सेलेक्ट कस्टमर डिटेल्स चाहिए, सो हमें कस्टमर आईडी सेलेक्ट करनी होगी and customer name also we have to select from which table, from customers table। अब हमें इसको ज्वाइन करना होगा ऑर्डर्स टेबल के साथ। ऑन व्हाट बेसिस? ऑन वेयर, यहां से हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वेयर ऑर्डर टेबल की कस्टमर आईडी इज इक्वल टू द कस्टमर्स टेबल कस्टमर आईडी। इसको अब हमें ज्वाइन करना होगा ऑर्डर डिटेल्स टेबल के साथ भी। On what base? On where orders table की order ID is equal to the order details table की order ID, ठीक है। अब हम लगा रहे हैं यहाँ वो कंडीशन, तो where order details में जो product ID है वो इक्वल हो जाए मैक्सिमम प्राइस के ऑफ दैट टेबल। अब ये मैक्सिमम प्राइस कैसे आएगा? सो इसके लिए हमें यूज करना होगा सब क्वेरी एंड इसमें हम लिखेंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल ऑर्डर बाय प्राइस, ठीक है। हाईएस्ट, जब हम यहाँ पे ऑर्डर बाय लगा देंगे मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा सारा आ जाएगा, तो सबसे ऊपर जो होगा वो होगा मैक्सिमम प्राइस होगा। फिर हम उसको लिमिट कर देंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तब आएगा मैक्सिमम प्राइस टॉप पे। अब हम इसको लिमिट कर देंगे, लिमिट 1, तो अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस मिल गया, ठीक है। ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज एंड नाउ रन दिस क्वेरी। प्रोडक्ट आईडी, ओके, नाउ रन इट अगेन। और ये है मीरा जोशी कस्टमर 48 जिन्होंने हाईएस्ट प्रोडक्ट जो है जिसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा है उसको परचेज किया है। ओके, नाउ कम टू आवर क्वेरी नंबर 8 एंड दिस क्वेरी सेज टू गेट द प्रोडक्ट्स विद लोअर स्टॉक देन द एवरेज। अब वो प्रोडक्ट्स निकालें जिनके जो स्टॉक हैं वो एवरेज स्टॉक से भी कम है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे? सो अगर हम एक कंडीशन लगा दें वेयर स्टॉक इज लेस देन द एवरेज स्टॉक, सिंपल। ओके, सो उसके लिए हमें लिखना होगा सेलेक्ट नेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड देन द स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल वेयर स्टॉक जो है वो लेस देन है किससे? एवरेज स्टॉक से, ठीक। बट ये एवरेज स्टॉक ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए हमें यूज करनी होगी सब क्वेरी and subquery will say to select the average stock from products table. This is it. Now let's run it. And here we have the stocks. ये जितने भी स्टॉक हैं ये एवरेज स्टॉक से भी कम है, ठीक है। So this is it for this video, guys. See you soon with the next project, with the next topic. And until then, keep practicing. Take care. Bye-bye.